Class 11th, we'll focus on hybridization. This is the last topic for your chapter of chemical bonding and molecular structure. So let's focus on it. So I'm just telling you, then I'll discuss with you in details that hybridization is the mixing of atomic orbitals. So when the atomic orbitals are mixed together, they lead for this from this phenomena, that is hybridization. Basically, what happens that when the atomic orbitals are intermixing with each other, they should be having a comparably energies, and then only this they form a new orbitals. So what is there that these particular atomic orbitals of comparably energy, they intermix together, mix together, and they form you a new orbital that is equal in energy and it's identical in all its respects. So that is the point. So fine, the point is that the hybridization, why we need this hybridization, what was the concept of hybridization, that why we are intermixing the atomic orbitals to lead you a new orbital. Over here we are not talking about the molecular orbitals theory, we are just talking about hybridization, and it is helpful because this particular concept help in explaining the geometry of the molecule, the formation of the molecule. So that's why we need hybridization, because there were certain problems that were coming with different examples, and that was easily clear explained by hybridization. Now, when these atomic orbitals of equal energies or comparably equal energies or comparably energies, when they intermix together, they leads to a new orbit and orbital that is known as your हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, अब जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा था कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो सपोज करो ये दो आपके बन रहे हैं, तो यही आपके दो जो हैं वो दो हाइब्रिड कंडीशन में ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये इससे ओवरलैप करेगा तो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं. ठीक है, so this is also a case of overlapping only, but the point is that they are of equal energies. These hybrid and hybrid orbitals of equal energy, they are identical to in all respects, right? Because you know na कि you are making a covalent bond, and covalent bond is always formed by mutual sharing of electrons ना. and basically अगर orbitals के term में करें तो orbitals एक दूसरे में identical होने चाहिए, और तभी वो एक दूसरे से overlap करके बनाते हैं ना. that is the case of your hybridization, है ना. Now the point arises why we need hybridization, that is important. I just want to explain you with the help of examples like carbon. Carbon is 1s2 2. We'll see how the carbons, we will write down first of all the electronic configuration of the carbon. Then you must see that carbon is 6, 1 2 3 4 5 6. So 2 more. So you know this is completely filled, this is half filled. So you remember that in ground state, whenever we are focusing on it, we see that we have, this is 2s is completely filled, but 2p, if you focus on 2p, one electron is here, one electron is here. If you remember the formation of covalent bonds, you know that that was related to mutual sharing of electrons were there. But when we talk about the covalency, so you remember that covalency is always calculated by the number of unpaired electrons. Just focus on it, how many unpaired electrons are there. So there are two unpaired electrons. So what is the covalency of carbon over here? It should be 2. But you remember that carbon is tetravalent in nature. So why it is showing 4 valency, 4 covalency? Because in excited state, one of the electron is jump from here and reaches to here. ठीक है, तो ये यहाँ आया और ये यहाँ आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, है ना, 1 2 और 3. So just focus on how many unpaired electrons are there. There are 4 unpaired electrons. So what is the covalency? 4 unpaired electrons आ गए यहाँ पर, unpaired electrons. तो इसकी covalency कितनी हो गई आपकी? Covalency will be 4. Now you understand. Now what is the case of hybridization? Why it has been important? Because देखो hybridization में condition क्या होती है कि हम maximum कोशिश करते हैं कि जो हमें एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला, एक अगर हम लोग है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा
निकाल लेते हैं। और इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि आपका, हम कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर जो एटम हो सके वो स्टेबल हो सके, और स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है जब वो हाफ फिल्ड हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो भी रहा हो, जैसे मीथेन अगर आपने ले लिया है, CH4 अगर आप कंडीशन देखते हैं, उसकी कार्बन एटम्स को आपने देखा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, अब ये कंडीशन ऐसी है हाफ फिल्ड की है। अब हाफ फिल्ड के होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्टेबिलिटी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो है वो जनरेट करती है, और आपको एक ईजिली आप बॉन्ड फॉर्मेशन बना सकते। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आइटम है, तो एक हाइड्रोजन आइटम इससे ओवरलैप करेगा, इससे ओवरलैप करेगा, इससे ओवरलैप करेगा, इससे। अगर आप H की केस में देखें 1 इलेक्ट्रॉन है 1s, तो 1s ये यहाँ पे आपका 2p भले ही है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पे भी 1s रहेगा, यहाँ पे भी 1s वाला ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी 1s, यहाँ पर भी 1s ओवरलैप करेगा। तो ये ओवरलैपिंग होने लगेगी और आपका ईजिली आप बॉन्ड फॉर्मेशन आप बना पाएंगे, है ना। आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आराम से, आप इसको जब ये कंडीशन आपकी आएगी तो आपको 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी यू विल गेट इट ओवर हियर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट, एक तो जैसे अगर ये देखिए ये S है, ये S का केस था, है ना, तो ये 2s वाला केस था, ये आपके भले 2p हैं, लेकिन जो H आ रहे हैं वो 1s के आ रहे हैं, तो एक ओवरलैपिंग आपकी S और S के बीच में होगी, और 3 ओवरलैपिंग्स आपकी S और P के बीच में होंगी, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओवरलैपिंग विल बी 1 बॉन्ड विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ S and S ओवरलैपिंग, 3 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ S and P ओवरलैपिंग। S और P आप देख सकते हैं, P ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड S ऑर्बिटल्स फॉर H, तो यू विल गेट 4 carbon H bond will be formed over here. So I think this is very important, and they are found to be of identical in all respects. So that's why I was again telling you that they are coming in the case where their identical point is same, and the bond length is also same for all the 4s. So this is also very important in case of hybridization. So let's focus on the bond angle also, we can focus over here. So bond angle that will be come around will be 109 minutes 109 degree and 28 minutes, this value will get. And bond order is also same for each bonds, that is about 108 picometer. PM means picometer, this thing you have to remember. Now I think hybridization is clear to you. The introductory parts, definition I have already discussed. Now there is certain rules which you have to follow, then only you can go for hybridization. So first rule arises because of the atomic orbitals, that one of the atomic orbitals of a particular single atom is taking part. Okay, so एक single atoms के atomic orbitals will taking part in the parts of hybridization. So when the atomic orbitals are overlapping, then you have to focus. So they leads to form you the hybrid orbital. ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड बी सेम कंपैरिजन टू योर अटोमिक। अगर आप 2 अटोमिक ऑर्बिटल लेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे आपके, 2 बनेंगे। एक लेंगे तो 1 बनेगा, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट अटोमिक ऑर्बिटल्स विच यू आर टेकिंग विद यू आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, मीन दे शुड बी अ स्मॉल, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो गया तो थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब लगभग इक्वल ही रहे तो सही है, या माइन्यूट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टेकिंग पार्ट इन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर ऑर्बिटल्स आर गोइंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स तो आप फिल करते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है उनको एज्यूम करा जाता है कि दे आर डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेटिंग ऑर्बिटल, जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल होगा उसी के उस पर वो रिलेट अप करेंगे। तो दैट यू हैव टू फोकस। सो देर आर सर्टन पॉइंट्स विच आई विल शो यू फ्रॉम द बुक्स ऑल्सो, दैट वे you have to see. Learn these points from the book only. These are the bookish language. I have just explained you in a easy language. So these are the rules which you have to focus, and please go for it. Now we are coming back to our carbon part only. If you remember, we have discussed about 2s2 and 2p2. Now this is 2s, this is 2p. Now this one, if you remember that how the electrons are taking part. So 2s has been taking part in it,
2px is taking part, 2py is taking part, 2pz is taking part. So this way you can see the examples how they are. तो इनके ये ऑर्बिटल्स थे ना, जैसे आपने 2s देखा, 2p में 2px 1 था, 2py 1 था, 2pz 1 थे, तो यही हाइब्रिडाइजेशन में आपके जा रहे थे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे थे. नाउ लेट्स फोकस, क्योंकि देखो हमारे कोर्स में बहुत से होते हैं. वी हैव सीन s ऑर्बिटल्स ऑल्सो, p ऑर्बिटल्स ऑल्सो, d ऑल्सो. सो वी हैव टू फोकस ऑल द एग्जाम्पल्स. So we'll see the example part of it. Now class, we'll focus on the first part, type of hybridization involving s and p orbitals. When we are using s and p orbitals, so in that case we have sp is the example, then sp2 is the case, and 3 is, this is very important, please learn it, and sp3, right? So if we'll focus on it, then just focus on it. How many orbitals have s1 s orbital is there and 1 p orbital is over here. If you focus on it, 1 s orbitals and 2 p orbitals are there. Over here 1 s orbitals and 3 p orbitals are there, right? So they are formed in this manner. ठीक है, ये नंबर कौन कौन से ऑर्बिटल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिएंटेशन. अगर हम इनका ओरिएंटेशन देखते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये आपका एक अलग, फर्स्ट के केस में छोटे छोटे बना लीजिएगा आप, ठीक है. इधर ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर थर्ड वर्ग भी बना दूंगी अभी मैं. बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड 120 डिग्री. इधर का भी देख लें हम लोग, 1 2 3 4 2 3, ठीक है. ये तो 180 120 109 minutes, right? So in the first case in SP में जो आपके शेप्स रहेंगे, शेप्स इंपॉर्टेंट रखना, लीनियर रहेगा. SP2 में ट्राइगोनल, प्लेनर. SP3 में यू हैव टेट्राहेड्रल. ठीक है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप इसमें देख लीजिएगा. इसमें एक दो लिख देते हैं. ठीक है, there are many books that are shared in your books, so you can focus on that part also. Don't think you only these examples, focusing on the other examples are also important. So let's take them one by one, how we are using it or forming it. So let's start with sp3 first, and then we'll go to the other part, because it will be helpful for you all to understand it from the higher grade. So यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो है आपका s है और 3p है. या 3p में क्या है, px भी रहेगा, py भी रहेगा और pz भी रहेगा आपका. ठीक है, ये है आपका. तो इसमें बेसिकली s के करेक्टर्स कितने हैं आपके, 25% रहेंगे. p बाई 100 मान लो तो ये 75% रहेगा. ठीक है, p के इसमें करेक्टरिस्टिक्स. तो लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर इट, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस वे यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. नाउ सपोज आई हैव टेकिंग मीथेन CH4 जो अभी हमने लिया था. So you remember carbon atomic number is 6. In ground state it is like this, 2px1 and 2py1 and 2pz is like this only. ये कंडीशन कब है आपकी, ग्राउंड स्टेट में. तो आप ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखते हैं कार्बन का, तो 1s will be represented in this way. ठीक है, तो ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p का केस है आपका. नाउ लेट्स गो फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन. आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू हाउ यू विल गो फॉर द एक्साइटेड स्टेट. तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 1s
लेकिन 2s के केस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह से उठ के and it will reaches to here. Now you are getting these four orbitals are there. So this is this particular form. ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसमें ये पोर्शन में आप देखेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 है ना। तो आप इसमें देखो 4 हमने क्यों चूज़ करे, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको फॉर्मूले से भी समझाऊंगी, अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ तो आप समझ लीजिए। 4 हमने इसीलिए चूज़ करे भाई, अभी आप यही एग्जाम्पल देखोगे लेकिन आप देखोगे कि हम सिर्फ यही 2 यूज़ कर रहे हैं या यही ले रहे हैं तो वो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी डायग्रामेटिकली बता रही हूँ, तो मैं डायग्रामेटिकली वे से तुम्हें शो करके बताऊँगी, फिर फॉर्मूले से बताऊँगी। अब बेसिकली क्या है, देयर आर फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यू आर यूजिंग दिस 4 ones। सो एंड प्लीज़ फोकस ऑन इट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर 4। तो 4 तो तुम्हें ओवरलैपिंग के लिए 4 ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा ना, तो 4 ऑर्बिटल तुम्हें चाहिए होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे, इसीलिए हमने 1 2 3 4 लिए। अगर यहाँ 2 लगा होता तो हम यहाँ 2 ही लेते हैं, अगर यहाँ 3 लगा होता तो हम 3 लेते हैं, ठीक है। सो दिस वे वी आर यूजिंग इट। सो दिस इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपकी चली गई। तो ये आपने इनका ये एक S दिया गया और 3 P's दिए गए, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हेन यू फोकस ऑन द हाइब्रिड स्टेट, अगर देखेंगे कार्बन की तो ये तो 1s है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ी हुई नहीं है, तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। बट दीज फोर्स आर नाउ कंबाइंड टुगेदर, और हर एक बॉक्स जो होगा वो आपका हर एक चीज़ जो है वो sp3 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 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, ठीक है। अब हम इसका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, लेकिन हम कार्बन को सेंट्रली प्लेस करेंगे और हाइड्रोजन इससे अटैच करेंगे। यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे हुआ, ये जितने बॉन्ड्स बोल रहे हैं सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। हम लिख नहीं रहे लेकिन फिर भी चलो, अगर आप चाहो तो आप सिग्मा बॉन्ड्स इनको शो करेंगे। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये इससे कनेक्टिविटी होगा, ये इससे कनेक्टिविटी होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कोई भी लिख लीजिएगा 109.28 मिनट्स, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर, तो आपको यही बनाना है। इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, मैं बुक से दिखा देती हूँ, वो मत बनाइएगा, आप परेशान हो जाएंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो 1s इज देयर एंड 2 p's आर देयर। 100 से एज्यूम करा जाए तो आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मालूम है कि s की कितना परसेंटेज करेक्टर शो करेगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, और ये कितना शो करेगा, ठीक है। तो आपको अब मिक्सिंग करनी है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करना है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है किसी कार्बन का, अगर आप लेके चल लीजिए तो ये आपको हाइब्रिड जो भी कंडीशन देंगे वो आप ये तीनों, जैसे आपको ना s आपने अटैच करा, इसमें px जुड़ेगा और py, वहाँ पे जैसे ये पीछे वाला इसमें भी लिख देते हैं, s था अटैचमेंट, इसमें px का भी इन्वॉल्वमेंट था, py का भी था और pz का भी था। तब इन्होंने आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए थे, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक s इन्वॉल्व हो गया, px इन्वॉल्व है, py होगा, ये आपको करीबन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे, ठीक है। यानी z वाले को छूना नहीं है अब इसमें। एंड आइडेंटिकल इन शेप, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग इथाइन, ठीक है, इथीन हमने यूज़ करा है। अब यहाँ 2 कार्बन आइटम्स हैं, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन है, अगर उसका हम कोशिश करके देखते हैं, पहले हम उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, फिर बात की बात है। 1s2 2s2 2p2। सो अब कंडीशन क्या है, एक्साइटेड स्टेट होगा, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट होगा। अब एक्साइटेड स्टेट में ये तो ऐसे ही रहेगा, वो आज भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन विल बी हियर और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें देखा रखा है कि sp2 में z वाले को आपको छूना नहीं है, तो बेसिकली इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, तो एक s लिया जाएगा, 2 p's लिए जाएंगे, तो ये सब आपके क्या बना लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जो आपका कार्बन का हाइब्रिड स्टेट होगा
एक्साइटेड को इससे लगा लेना, वहाँ पे भी साइन लगा लेना एक्साइटेड का, एस्ट्रिक साइन है ये, ठीक है। तो ये हाइब्रिड स्टेट ऑफ फर्स्ट कार्बन, ठीक। तो ये आपका जो है 3 ही जुड़ेंगे, क्योंकि आखिरी वाले को तो आपने लिया ही नहीं है, ठीक है, वो अलग थलग रहेगा, ऐसे सेपरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके कौन है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और सब क्या है, sp2 sp2 एंड sp2 विल बी देयर, ठीक है। अब आपके पास दूसरा कार्बन आइटम है, अब कार्बन जो सेकंड कार्बन आइटम है उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, कार्बन आइटम, ठीक है। उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले लीजिए, या एक्साइटेड स्टेट ही लिख लीजिए, बिल्कुल जैसे आपने पीछे बनाया रखा, इन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो, हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेकेंड कार्बन ऑल्सो, वी विल सी इट्स लाइक दैट. Please don't focus on this thing. This is the case where you have. Now we'll focus the structure also. This is the structure, how it is being formed. You can see that these are the, you know ना, हाइड्रोजन आइटम्स आर देयर, तो उसमें 1s की कंडीशन होती है, 2s की कंडीशंस होती है ना, वो s ऑर्बिटल्स आप फोकस करेंगे, क्योंकि 2s का केस है यहाँ पर। p ऑर्बिटल्स जो हैं वो कार्बन्स के हैं, है ना, दे आर ओवरलैपिंग। अब पाई बॉन्ड भी बन रहा है, क्योंकि तुम्हें मालूम है इथीन में डबल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड्स बनेंगे, तो ये आपके ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जहाँ पी भी बना रहे हैं आपके, तो दिस वे यू विल हैव अ बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ द पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, हाई द सिग्मा बॉन्ड्स आर बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन जो अटैच्ड हैं ये सिग्मा बना रहे हैं, तो दिस वे यू कैन फॉर्म द स्ट्रक्चर। Now we'll focus on the last one of it, sp hybridization. 1s and 1p's orbital is being overlapping, or basically they are mixing up together to give you this sp hybridization. 1s orbital and px will combine together, they give you 2 sp hybrid orbitals. Because I have already mentioned, जितने आप atomic orbitals लेते हैं उतने ही आपके hybrid orbitals बनते हैं। 2 लिए हैं तो यहाँ 2 hybrid orbitals बनेंगे, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, इक्वल एनर्जीज़ के होंगे, ठीक है, और इनके शेप्स भी आइडेंटिकल होंगे, लीनियर शेप बनाते हैं ये लोग। और लीनियर की केस में आपको मालूम है कि एंगल जो है वो 180 का बनता है। अब आप कार्बन एटम पे ही फोकस करिए, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। लास्ट वाले पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि वही आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड है। अब ये कंडीशन तब थी जब ग्राउंड स्टेट था आपका कार्बन में, अब एक्साइटेड में आएगा, ठीक है। हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन है, C2H2, ठीक है, इथाइन है एग्जांपल। तो ये वही वाली बात है कि फर्स्ट कार्बन एटम है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन एटम है, ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट कार्बन एटम का एक्साइटेड देख लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, एस्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट करिए। उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका 2s में से जंप करके और ये 2p's में चला जाएगा। 2 तो ऑलरेडी हैं, ये ऐसे बनाइए और यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका 2p का कंडीशन है। अब हाइब्रिड स्टेट पे जाएंगे, तो ये तो भाई कम्प्लीटली फील्ड से फोकस नहीं करना है, आपको पता है कि आपको क्या क्या फोकस करना है अपना, है ना। मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ, तो आप इसमें सिर्फ ये दोनों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एक s चाहिए और एक 2px चाहिए। जो आपका जो हाइब्रिड स्टेट है वो ये दोनों कंबाइंड स्टेट में रहेंगे, और ये आपके प्योर कंडीशन रहेगी, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्योर ऑर्बिटल्स हैं। ये आप ले लीजिए sp हैं, ये भी sp हैं, और ये प्योर p ऑर्बिटल्स हैं। मतलब आपके जो बेसिकली ये py और pz जो है वो इंडिपेंडेंटली अलग हैं। अब ये सारी चीज़ें सेम आप ऐसे ही बनाओगे, और यहाँ पे जहाँ मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है आप सेकंड लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका सेकंड कार्बन आइटम है, क्योंकि याद करो C2H2 है, तो अगर हम इसका पुराना फंक्शन अपना स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको याद होगा ये ऐसे बनता था क्लास 10th में,
है ना। तो सेम चीज़ आप यही दोबारा लिखोगे, रिपीट करोगे, और आप अपना बस यहाँ मैंने जो फर्स्ट कार्बन एटम लिखा, आप सेकंड कार्बन एटम लिख दो, उसका वही ग्राउंड स्टेट चलेगा, वैसी ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चलेगी, वैसी उसकी हाइब्रिड स्टेट चलेगी, और आपका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब हम इनका मेन स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो आ रहा है, हमने स्ट्रक्चर जो अपने उस कंडीशन में देखी थी वो कैसे आ रहा है ना। इधर इसको एक ही कार्बन, एक ही हाइड्रोजन लिखिए इसे, क्योंकि CH2 है ये। तो दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक इट, और इस तरह से आप इसको अब डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। हम देखिए PY PZ आपके इंडिपेंडेंटली रह गए थे, जो आपकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर ये है, और एक ही हाइड्रोजन एटम था जो आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। अभी देखिए ये 2PY और 2PZ जो है ये आपके पाई बॉन्ड्स फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये बीच में कार्बन में ये एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए शो करेगा, एक sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ये आपका बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड ये आपको शो करेगा, और यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड शो करेगा। तो इस स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है, यही आपको बनाने होते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आपको और डिटेलिंग में थोड़ा सा दिया रखा है कि हाउ दे आर फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड। सो ये सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्मेशन है, ये 2 जो है वो आपके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। आपके लिए मेन रिक्वायरमेंट ये डायग्राम है।